Hello dosto, welcome to Siddhi Punjab. Today we are going to discuss the current affairs related to 30th and 31st March. Right? If you're liking the content, please like, share and subscribe the channel, support the channel so that we are able to produce good content for you. Right? Agge vadhan to pehla, let's just see the contents that we are going to discuss today. These four main topics will be the topics of discussion, right, from 30th and 31st March. Right, first important topic IR related, the topic that is in news. I'll be using mixed language. Some students have presented a concern that they would like me to speak more in English or something, so that for better understandability and you can use the same language while writing your answers also, right? So first topic ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे, भूटान changes stand says China party to Doklam dispute. राइट देखो डोकलाम जो है बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है फॉर इंडिया एंड वेन एवर इट इज़ इन न्यूज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो पहला आप डोकलाम देख लेने क्या है। डोकलाम बेसिकली एक प्लेटू एरिया है इन फॉलिंग इन द टेरिटरी ऑफ भूटान, राइट। भूटान क्लेम्स दैट, इंडिया सपोर्ट्स दैट क्लेम, बट चाइना कंटेस्ट्स इट। हुन इफ़ यू सी दिस मैप, राइट, दिस इज़ बेसिकली डोकलाम, ये जो तुसी रेड शेडेड रीजन देख सकते हो। Now why is it shaded red? Because this is a disputed territory. China also lays claims to these areas which Bhutan says that it is theirs. ठीक है, ये सारे areas especially Doklam. Now Doklam India इन्ना interested क्यों रहता है? Why India supports Bhutan's claims over Doklam? राइट, तो तुसी देखोगे दैट इत्थे डायरेक्टली इंडिया का बॉर्डर है, इधर आप चाइना देख रहे हैं, इधर आप भूटान देख रहे हैं, एंड हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, राइट। नाउ इंडिया का बहुत ही स्ट्रैटेजिकली स्मॉल पैसेज सिलीगुड़ी कॉरिडोर इत्थे लोकेटेड है, दैट इज़ वेरी नियर टू डोकलाम, right? Now see in this map also, this is Bhutan, this is China, this is India, and this is India's strategic Siliguri corridor. Now if many of you might be aware about the significance of Siliguri corridor, as you can see in this picture itself, Siliguri corridor जेड़ा है बहुत important है to link India, mainland India with the northeast of India, with northeast of India, राइट। सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही एक अपने कोल एकमात्र रास्ता है टू लिंक अवर मेनलैंड इंडिया विद अवर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 8 ਇੱਧਰ ਸਟੇਟਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ, right? Now if China gets hold of this Doklam plateau, it will be having direct view of the Siliguri corridor. मिलिट्री टर्म्स च कहिए तो यह काफ़ी कंसर्निंग सिचुएशन है। चाइना दी मिलिट्री विल बी सिटिंग ऑन अवर हैड एंड इट कैन एनी टाइम, कदी लड़ाई छिड़ गई, कदी जंग हो गई, तो कदे भी चाइना जिहड़ा है साडे आ सिलीगुड़ी कॉरिडोर नूं ब्लॉक कर सकता है, एंड इट कैन कट ऑफ इंडियाज़ एक्सेस फ्रॉम लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स टेरिटरी। ठीक है, आई होप तुहानूं समझ आया है। इंडिया की टैरीटोरीअल इंटीग्रिटी लई ये बहुत ज़रूरी है कि डोकलाम जिहड़ा है वो चाइना के इन्फ्लुएंस के अंडर ना आए। इफ़ चाइना गेट्स कंट्रोल ऑफ दिस एरिया, it will become very difficult for India to safeguard its territorial integrity, to safeguard its northeastern part. ਇਸੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੋਕਲਾਮ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਖੋ 2017-18 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਛਿੜੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਸਟਾਰਟਡ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਰੋਡ दैट वाज एंटरिंग इनटू डोकलाम टेरिटरी। ਤਾਂ ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਉਸको ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ अर्लीयर भूटान ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਭੂਟਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਭੂਟਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਦੇਖੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਫੀਅਰਸ ਦੈਟ ਭੂਟਾਨ may give up this area to stabilize to get these areas,
ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਭੂਟਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਟੂ ਸੈਟਲ ਦਿਸ ਬਾਊਂਡਰੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦੋਕਲਾਮ, ਭੂਟਾਨ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਸੋਲਵ ਦੇਅਰ ਬਾਊਂਡਰੀ ਡਿਸਪਿਊਟਸ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਈਟਮ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੋਕਲਾਮ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਪ ਤੇ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ 'ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਮੇਨਸ 'ਚ ਵੀ ਡੋਕਲਾਮ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡਰਾ ਦਿਸ ਮੈਪ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਕਲਾਮ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਮੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਮੈਪ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਮੇਕ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ दैट विद योर हैंड, प्रैक्टिस करो, मेन्स विच काफ़ी अच्छे मार्क्स दिलाएगा इफ़ यू आर एबल टू ड्रॉ दैट, राइट। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज़ ऑन डिजिटल डिवाइड्स, ठीक है जी। न्यूज़ च डाटा आया है ऑन ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਸ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਟੋਟਲ 10.2 ਲੱਖ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2.45 ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਅਰਾਊਂਡ 2.5 ਲੱਖ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ 100% ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਸਿਰਫ 47% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 29%, HP ਵਿੱਚ 27%। ਤਾਂ ਅਗਰ ਨੇਬਰਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਕੰਪੈरेटिवली ਵੈਲ, ਬਟ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਲੌਂਗ ਵੇ ਅਹੈਡ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ digital inclusion of the less well off population, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀਏ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਆਰ ਵੀ ਲੇਇੰਗ ਇੰਫੋਸਿਸ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟੂ ਟੀਚ students, ठीक है। they are using many internet powered innovative techniques to make their students learn in a faster innovative manner। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਅਰ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ 117 ਸਕੂਲਸ will be set up with a well defined infrastructure for these government schools, right। So if we are targeting schools of eminence, we have to ensure that every government school has this internet connectivity also, which is very basic to provide quality education services to the students। Secondly, we do not want to create gaps between haves and have nots, मतलब ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਇੱਕ ਤਰਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਜਿਸ 'ਚ ਨੀਡੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਬੇਸਿਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਲਰਨ ਮੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟੱਫ ਔਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦ ਰਿਚੈਸਟ ਮੈਨ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਹੀ ਬਿਕਮ ਸੱਚ ਅ ਰਿਚ ਪਰਸਨ। ਉਹੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਏ? ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਇਨ ਦੀ ਅਰਲੀਅਰ ਟਾਈਮਸ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1970s 80s ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਡਿਵਲਪਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਫੋਰਮੈਟਿਵ ਈਅਰਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਹੈਵਸ, right। he has the access to internet, computer and all the latest technology and education that was required for him to turn out to be a bright have a bright future। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੋ ਕਿ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ
कुछ भी सहूलतां नहीं है कि वो आपदे फ्यूचर ਨੂੰ अच्छे तरीके ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके ਦਾ हैव ਤੇ हैव नॉट्स ਦਾ गैप भी ਆਪਾਂ क्रिएट नहीं करना है। इसलिए ये ਜਿਹੜੇ इंटरनेट ਤੇ डाटा है ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ फोकस करके ਇਹਨੂੰ सही करने की कोशिश अगे करनी है। हजे 47% स्कूल्स 'ਚ है, पंजाब ने फोकस करना है कि ये वध के 100% ਤੇ ही पहुँचे। राइट, ठीक है जी, दैट इज़ वाई वी नीड इंटरनेट। ठीक है जी, ये इंटरनेट अगर होवे तो आप देखो एक तरफ गल कर रहे हैं स्मार्ट क्लासरूम्स की, रोबोटिक्स की, AI की, ये सब किवें होएगा? यू नो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे ये सब किवें सीखणगे जब तक इंटरनेट ही नहीं है। राइट, प्राइवेट स्कूल 'ਚ इन्ना सब चीज़ों की गल्लां हो रही हैं, अटल इनोवेशन लैब्स की गल्लां हो रही हैं। ठीक है, ये सब कुछ मायने नहीं रखता अगर इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है, लो इंटरनेट स्पीड है। राइट, इसलिए ਇਹਦਾ सोल्यूशन क्या है, अगे चल के आप क्या रिकमेंडेशन दे सकते हैं? पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव्स से आपको फोकस करना चाहिए है। ब्रॉडबैंड सर्विसेज ਜਿਹੜੀਆਂ एक स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई हुई है, सारी पंचायत ਜਿਹੜੀਆਂ है इंडिया ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इंटरनेट कनैक्टिविटी, वाईफाई कनैक्टिविटी प्रोवाइड करना, तो उस प्रोजेक्ट ਨੂੰ टाइमली ਜਿਹੜਾ है इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है जी, दैट इज़ वॉट वी कैन डू फॉर नाउ। ठीक है, सारी रिकमेंडेशन तुसी दे सकते हो, और भी जिवें आर्टिकल आते रहेंगे आप होर रिकमेंडेशन डिस्कस करांगे। नाउ नैक्सट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज़ पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सिज। वाटर रिसोर्सिज ते पार्लीमेंट की एक कमेटी ने कुछ सजैशनस दित्तियां हैं। देखो ग्लेशियर्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड्स ग्लेशियर क्या होंगे है। राइट, ग्लेशियर्स जेडे है अपने देज आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर for the entire population of the world and India also। right, now committee ने क्या concern जताया है that in India we do not have a special body or committee you can say that can monitor the status of the glaciers, कि glaciers ते ग्लेशियर्स की थिकनेस कितनी है, जिमें तुसी कह सकते हो ग्लोबल वार्मिंग वध रही है तो उसका इंपैक्ट ग्लेशियर्स ते क्या हो रहा है, what is the situation of melting of glaciers। ठीक है, that means the parliamentary committee is trying to say that glaciers are such a vital national resource, we are depending on glacier for our water needs, but we do not have any glacier management committee or body in the country। right, this committee is very important to monitor continuously the health and the status of glaciers। ठीक है, ग्लेशियर्स अपने लिए ज़रूरी है, अगर आप उन्होंने ध्यान नहीं रखांगे, उन्होंने मॉनिटर नहीं करांगे, दैन इट कैन इंपैक्ट दी वाटर नीड्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, देखो ग्लेशियर्स ही है ਜਿਹੜੇ कि जिन्हों के करके काफ़ी ज़्यादा अपना वाटर नीड सैटिस्फाई होंगी है, तो ग्लेशियर मैल्टिंग करके ही काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग भी होंगी है, स्पैशली अपने हिली एरियाज़ 'ਚ। आप ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की गल करते हैं, ठीक है, फ्लैश फ्लड्स की गल करते हैं, जोड़ा आप उत्तराखंड 'ਚ देखा, जोड़ा आप हुणी रीसेंटली पाकिस्तान 'ਚ देखा। राइट, ये सब चीज़ों अच्छे तरीके नाल मैनेज करने लई वाटर हैज़ार्ड नूं, फ्लडिंग नूं अच्छे तरीके नाल मैनेज करने लई सानू ग्लेशियर्स नूं कंटीन्यूअसली मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। एंड इसे वजह तो पार्लीमेंट्री कमेटी ने यह रिकमेंड किया है दैट वी क्रिएट अ बॉडी फॉर ग्लेशियर मैनेजमेंट इन इंडिया। राइट, तो ये तुसी आपदे नोट्स लिख सकते हो whenever there is a question on maybe glaciers, on global warming, on glacial lake outbursts or on flash floods in Himalayan regions, you can always recommend that the Parliamentary Committee of Water Resources has recommended creating an apex body on glacial management in the country to manage the Himalayan glaciers well, to regulate the thinning of Himalayan glaciers well, which is responsible for these flash floods or glacial lake outbursts or other kind of challenges, especially in the Himalayan regions। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ये यूटिलिटी क्या है। मैं तुहानू इस आर्टिकल की यूटिलिटी दस रही हाँ, तुसी आपदे आंसर्स च किवें इहनू यूज़ करना है। राइट, देखो दिस इज़ ऑन यू दैट हाउ यू यूज़ द कंटेंट दैट आई एम गिविंग हेयर। देर आर मैनी इनोवेटिव वेज इन विच यू कैन यूज़ द सेम कंटेंट एंड इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन डिफरेंट एरियाज़। तो तुसी आपदी इमेजिनेशन यूज़ करना है एंड यू हैव टू अप्लाई द लिमिटेड नॉलेज दैट यू हैव इन योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेन्स एग्जामिनेशन। राइट, लास्ट आर्टिकल अज तक करते हैं सेंटर वेव्स फुल कस्टम्स ड्यूटी ऑन रेयर डिसीज़।
राइट। हुण इहदे विच साडे लई रेयर डिसीज़ क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स एज वेल एज मेन्स दे साइंस एंड टेक पार्ट विच पंजाब PCS कैन डेफिनेटली आस्क अ क्वेश्चन ऑन रेयर डिसीज़ नाउ दैट इट इज़ इन न्यूज़ ऑल्सो, सो इट इज़ हाईली पॉसिबल। ठीक है। रेयर डिसीज़ क्या होंदा है, जिवें तुसी नाम तो ही यू कैन जज इट। अगर आपां जनरल डेफिनेशन देखनी है, रेयर डिसीज़ इज़ समथिंग दैट अफेक्ट्स अ स्मॉल पॉपूलेशन, राइट। ठीक है, मतलब कुछ कुछ लोगों विच ही पाई जाती है, इस तरीके नाल नहीं हुंदी कि अपने वाइड स्प्रैड होवे कि हर कोई इंपैक्टेड है, राइट। अगर टैक्नीकली तुसी इहदी डेफिनेशन देखनी है, रेयर डिसीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्फन डिसीज़, राइट। दे आर जज्ड बेस्ड ऑन 3 मार्कर्स, 3 इंडिकेटर्स के बेसिस ते आपां जज करांगे कि एक डिसीज़ रेयर डिसीज़ है कि नहीं है, राइट। वो इंडिकेटर्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट आर इंपैक्टेड बाय दैट डिसीज़ दी प्रेवलेंस, इट्स प्रेवलेंस कि किन्ने लोकां विच ये फैली हुई है एक जगह ते या एक एरिया विच, राइट। ते द अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शनस, कि उहदे लई ट्रीटमेंट ऑप्शनस अवेलेबल है मार्केट विच डॉक्टर्स कोल या नहीं, right। Depending on these 3 parameters it is decided that whether the disease is a rare disease or not, right। ये definition याद रखो, if there is a question in news I mean in mains you have to write this definition। डेफिनेशनस जड़ियाँ हैं एह जी क्वालिटी डेफिनेशनस लिखनी है, तुसी कोई भी लूज डेफिनेशन ना लिखिया करो। वेन एवर यू आर डिफाइनिंग अ टर्म यूज अ टेक्निकल डेफिनेशन। दिस इज़ अ डेफिनेशन दैट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय WHO, right। WHO defines a rare disease having frequency of less than 6.5 to 10 per 10,000 people, कि अगर 6 तो 10 लोग जड़े है वो इफेक्टेड होंगे है अमंगस्ट 10,000 दी पॉपूलेशन, दैन वी कैन कॉल दैट डिसीज़ एज अ रेयर डिसीज़। ठीक है। यूजुअली रेयर डिसीज़ जड़ियाँ होंदियां दीज आर ट्रांसफर्ड जेनेटिकली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, राइट। अगर टोटल एस्टिमेट्स किते जान, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द इंटायर वर्ल्ड हैज़ ऑलमोस्ट 7,000 known rare diseases till now and 300 million patients have been impacted by these rare diseases। some of the example ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਥੈਲਸੀਮੀਆ, ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਅਨੀਮੀਆ, ਰਾइट। इस तरीके नाल काफ़ी सारी डिसीज़ है, गॉशर्स डिसीज़, पॉम्पे डिसीज़, राइट। you can just read all the names that are mentioned here। if in any case prelims में they can ask you which of the following is a rare disease or not, in that case you should be able to identify some of these diseases। स्वीट सिंड्रोम, मल्टीपल सेक्रोलिसिस, ज़्यादा डिटेल में जान की लोड़ नहीं है, जो 2-4 बार पढ़ लोगे यू विल रिमेंबर दीज डिसीज़ के नेम एंड यू विल बी एबल टू आंसर। नाउ टू फाइट रेयर डिसीज़ इंडिया हैज़ ऑल्सो रिलीज्ड नैशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिसीज़। 2021 च असी नैशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिसीज़ भी इंट्रोड्यूस की सी। इहदा ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्स्ट पॉइंट प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ फॉर रेयर डिसीज़। जिवें आपां क्या रेयर डिसीज़ नूं आपां रेयर क्यों कहने हैं, एक कारण हुंदा है कि ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल है, तो इंडिया का फोकस है अंडर दिस पॉलिसी टू फाइंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर रेयर डिसीज़। ठीक है जी। सेकंड, टू प्रमोट लोकल ड्रग डेवलपमेंट सो दैट इंडिया हैज़ दवाइयाँ टू फाइट दीज रेयर डिसीज़। ठीक है। तो इंडिजीनियसली आपां वो दवाइयाँ प्रोड्यूस करिए, आपां नूं बाहरों इंपोर्ट ना करनियां पैन, राइट। उस तो बाद इंडिया ने रेयर डिसीज़ नूं 3 ग्रुप्स च डिवाइड किया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, राइट। ग्रुप 1 मतलब जो वन टाइम ट्रीटमेंट नाल क्योर हो जाएगियाँ। ग्रुप 2 दैट टेक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स, रिपीटेड ट्रीटमेंट्स जिन्हां नूं चाहिए है ट्रीट होने लई, राइट। दैन ग्रुप 3 क्या है, एह जी डिसीज़ जिन्हां वास्ते डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जिहड़ा है अवेलेबल है, बट द चैलेंज इज़ कि उहदी कॉस्ट वेरी वेरी हाई है, तो वो लोकां लई अफोर्डेबल किवें बनाईयां जान, ग्रुप 3 च एह जी डिसीज़ आउणगीਆਂ, राइट। हुण उस तो बाद नैक्सट फोकस है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिहड़े है सैटअप किए है गवर्नमेंट ने, राइट। इस पॉलिसी के अंडर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क्या मतलब है, यह जे एरियाज़ जिथे रेयर डिसीज़ रिलेटेड सारी रिसर्च डेवलपमेंट डायग्नोसिस वगैरह होएगा, सो दैट वी कैन फाइंड आउट सॉल्यूशंस ट्रीटमेंट्स फॉर रेयर डिसीज़, राइट। 8 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द इंटायर कंट्री विल बी सेटअप एंड 5 निदान केंद्रास, राइट। सोल्यूशन या तुसी कह सकते हो
ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5 ਨਿਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਸ ਫॉर ਰੇਅਰ ਡਿਸੀਜ਼ਜ਼ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸੈਟ ਅਪ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਪੋਲਿਸੀ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਰੇਅਰ ਡਿਸੀਜ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ 'ਚ ਚੈਲੰਜਿਸ ਕਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਫਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਦੇ ਆਰ ਰੇਅਰ ਬਿਕॉज one of the reason is treatment is not available. Only 5% rare diseases ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ treatments are available. For 95% of rare diseases there are no approved treatment options available, right? So lack of treatment availability, high cost, even if the treatment is available the costs are very very high. 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸਾਲ ਪਰ ਸਾਲ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ, which is very prohibited for normal population. लॉस ऑफ लाइफ्स बहुत ज़्यादा है रेयर डिसीज़ विच, बिकॉज इन्हों डायगनोस करना ईजी नहीं है, डिलेज होंगे है, मिस डायगनोसिस होंदा है, दैन ट्रीटमेंट टाइमली नहीं मिलता है, तो रेयर डिसीज़ करके लॉस ऑफ लाइफ बहुत हाई है। उस तो भी ज़्यादा कंसर्निंग इशू ये है कि ये सब तो ज़्यादा चिल्ड्रन को इंपैक्ट करती है। इफ़ यू सी द रेयर डिसीज़ डाटा, 50% ऑफ द रेयर डिसीज़ हैव बीन सीन और ऑब्जर्व्ड इन द चिल्ड्रन इटसेल्फ, right? And 35% of these 50% of children they die before the age of 1 year। ठीक है, रेयर डिसीज़ सब तो ज़्यादा 50% बच्चों विच है, तो इन्हां विचों 35% बच्चे जिहड़े है 1 साल की उम्र ते पहुँचण तो पहला ही मर जाते हैं। 10% बच्चे 1 ਤੋਂ 5 साल की उम्र विच दे डाई, एंड 12% बच्चे दे डाई 5 to 15 ईयर्स। राइट, तो मतलब जो रेयर डिसीज़ नाल जूझ रहा है वो जिन्नी भी लाइफ जिएगा इट विल बी अ डिफ़िकल्ट लाइफ एंड डेथ रिमेन्स वेरी एमिनेंट। राइट, लिविंग सच अ लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो इसीलिए दिस इज़ अगेन अ वेरी बिग कंसर्न रिलेटेड टू रेयर डिसीज़। राइट, उस तो बाद अगर पॉलिसी फ्रेमवर्क देखा जाए, स्पैशली इंडिया का अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क जोड़ा है सफिशिएंट नहीं रहा है। तुसी खुद देखो कि 2021 जाके आप रेयर डिसीज़ लई एक कोई पॉलिसी बनाई है। राइट, दैट मीनस अपनी गवर्नमेंट जो है हजे नहीं इन्नी रेडी है रेयर डिसीज़ नू डील करन लई। राइट, उस तो बड़ा डाटा इशू इज़ दिस दैट देयर इज़ लैक ऑफ एपिडेमोलॉजिकल डेटा। डाटा बहुत ज़रूरी होंदा है टू अंडरस्टैंड एनी डिसीज़ और एनी प्रॉब्लम दैट इज़ देयर इन दी वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं तुहानू कहां कि पंजाब विच कोई बहुत क्राइम रेट है, ठीक है, लैट्स जस्ट टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, तुहानू किमें पता चलेगा, हाउ विल यू अग्री टू दिस पॉइंट दैट पंजाब विच बहुत क्राइम है? I have to give you data. I will say that see पिछले 1 महीने के अंदर 100 चोरियां हो चुकियां ने, मे बी 50 मर्डर हो चुके ने, like that. If I give you data, you will be able to better analyze, better know the problem and give me better solutions. You will say अच्छा तो ये issue हो रहे ने, let's now find out the reasons for this. Data is very important for you to make any kind of decision, policy or give out any kind of solutions. The India which the issue is that we do not have adequate data especially related to these rare diseases. तो जब तक डाटा नहीं होएगा, डाटा रजिस्ट्री नहीं होएगी, we will not be able to make policies for this issue. ठीक है, इंडिया विच रेयर डिसीज़ की रजिस्ट्री मतलब जिथे डाटा स्टोर होगा, दैट स्टार्टेड इन 2017 इटसेल्फ। ठीक है, उस तो पहला अपने कोल कोई डाटा नहीं हुंदा सी। राइट, सो इंडिया जो है तुसी कह सकते हो कि हुण स्टैप्स तो लै रहा है हौली हौली, जिवें आपां रजिस्ट्री एस्टैबलिश करती, 2021 विच पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती, एंड नाउ गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी भी वेव करती ऑन रेयर डिसीज़। सो इंडिया इज़ टेकिंग स्टैप्स बट मोर नीड्स टू बी डन एंड एट अ फास्टर पेस। ठीक है, तो रेयर डिसीज़ से सारा डाटा लिख के रखो। देयर कैन बी अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स एंड देयर कैन बी अ क्वेश्चन इन मेन्स ऑल्सो, स्पेशली फॉर पंजाब PCS। ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस कंटेंट यू हैव टू लर्न। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।